Namaskar to all. Today we are going to discuss our physics chapter, that is motion. So the first question arises in our mind is, what is motion? In physics, motion is the phenomenon in which an object changes its position over time. We can say that object when an object changes its position from one place to another with respect to time, it is said to be in motion. Motion is mathematically described in terms of displacement, distance, velocity, acceleration, speed and time. मोशन को हम डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड एंड टाइम्स के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं मैथमेटिकली. नाउ वी हैव डायग्राम्स इन विच planets and stars are moving, so we can say that they are in motion. Similarly, birds fly from one place to another place, so we can say that they are in motion. Now, what are physical quantities? A physical quantity is a property of a material or system that can be quantified by measurement. Simply, we can say that anything that we can measure is called as physical quantity. A physical quantity can be expressed as combination of a numerical value and a unit. एक फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसका वो क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है एक न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि 1 2 3 4 एंड अ यूनिट, फॉर एग्जांपल केजी, मीटर, एक्सेट्रा. Physical quantities can be categorized in two parts. One is scalar quantity and another is vector quantity. A scalar quantity is a quantity which has only magnitude. For example, speed, distance, time, etc. फिजिकल जो स्केलर क्वांटिटी है वो आपकी केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं, उनमें उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस डायरेक्शन में लग रहा है. फॉर एग्जांपल, आप एक ही डायरेक्शन आप चले जा रहे, आप पैदल चलते हो और एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, आपने वो डिस्टेंस किस डायरेक्शन में ट्रैवल किया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है. जबकि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन. वेक्टर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड ही मायने नहीं रखता, आपकी डायरेक्शन भी मायने रखती है. अगर आप कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें आप किस डायरेक्शन में उसको ट्रैवल कर रहे हो वो भी मायने रखता है. एग्जाम्पल्स हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ के वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेट्रा. Now let us take an example to understand difference between distance and displacement, or we can say that a scalar quantity and a vector quantity, because here distance is the scalar quantity and displacement is the vector quantity. A boy Ram goes from his home to his friend's home that is 10 meters away from his home. In this case he goes in a straight line, so the distance he traveled, that is 10 meter. Now then from his friend's home he goes to his school. Now here he covered total distance is 10 plus 130 meter is equals to 140 meter. Now let us discuss first of all definitions of distance and displacement. Distance is the length of the actual path traveled by a body in a certain interval of time. So here the total distance he traveled is 140 meter because it is the actual path he traveled. But in case of displacement, displacement is the shortest distance between the initial and final position of a body. So here the shortest path from his initial position, that is his home, and to his final position, that is school, is 100 meter. So we can say that in this case when Ram is at his school, the distance he traveled from his home is 140 meter and the displacement is 100 meter. Now when school is over, he returned back to his home. Now in this case the total distance he traveled is the actual path, that is 10 plus 130 plus 100 meter, that will be 240 meters. So the distance he traveled is 240 meter. But what about displacement? Displacement is the shortest part between initial and final position. The initial position was
his home and the final position is his home, then the displacement will be zero because he is at the same position. मतलब उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी और उसकी जो फाइनल पोजीशन है वो आपकी सेम है, यानी कि जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा, जबकि डिस्टेंस आपका 240 मीटर है. Now we have types of motion: uniform motion and non-uniform motion. Uniform motion occurs when an object travels equal distance in equal interval of time. Uniform motion happens when the object is moving with a constant velocity. जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करता है तो हम उस मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल रोटेशन ऑफ अर्थ एंड मूवमेंट ऑफ hands of a watch. While non-uniform motion occurs when an object travels different distances in equal interval of time. Non-uniform motion is also known as accelerated motion, means velocity is not constant. Examples of non-uniform motion are oscillation of pendulum and motion of a car in traffic. जब हम पेंडुलम के बॉब को रिलीज़ करते हैं तो स्टार्टिंग में उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और धीरे धीरे होते होते उसकी स्पीड स्लो हो जाती है. तो ये शो करता है कि जो मोशन है उस ऑब्जेक्ट का वो सेम नहीं है, वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था पर्टिकुलर टाइम में वो अलग अलग हो जाता है क्योंकि उसकी स्पीड स्लो होती जाती है. सिमिलरली जब ट्रैफिक में कोई कार मूव कराते हैं अपन तो उसकी स्पीड भी कम ज़्यादा होती है, मतलब वो डिस्टेंस जो है टाइम के हिसाब से ट्रैवल नहीं करता, अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वी कैन रिप्रेजेंट मोशन ऑफ एन बॉडी ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. हियर वी हैव टू टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, वन इज़ फॉर यूनिफॉर्म मोशन एंड अनदर इज़ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें सिंपल सा डिफरेंस है, जब भी एक स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्लोप बनेगी तो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, वो ग्राफ आपका यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा. और जब भी कांस्टेंट लाइन, जब भी आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी या जो आपका स्लोप है वो कांस्टेंट नहीं होगा तो वो आपका रिप्रेजेंट करेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन को. Now coming to next topic, that is speed. Speed is defined as the total distance traveled by an object in टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द मोशन टेक्स प्लेस. स्पीड को हम डिफाइन कर सकते हैं जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑब्जेक्ट ने एक टाइम पीरियड में, जिस टाइम तक वो मोशन प्रोसेस रहा उसको हम उसकी स्पीड कहेंगे. या स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड एज तो डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. हेयर एस डिनोट्स द डिस्टेंस एंड टी डिनोट्स द टाइम. ऐसा यूनिट फॉर स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. The ratio of total distance to total time taken by the body gives its average speed. Average speed can be calculated as total distance traveled divided by total time taken. A body is said to have constant or uniform speed if it travels equal distance in equal interval of time. अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलती है और वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करती है तो उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी. वेलोसिटी इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम स्पीड बिकॉज इन वेलोसिटी देयर इज अ रोल ऑफ डायरेक्शन. सो वी कैन डिफाइन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नेम्ड एज वेलोसिटी. दैट इज इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन यूनिट टाइम. We can find out the velocity similar way, total distance traveled by object in time period. In case of velocity of an object changing at uniform rate, then average velocity is given as. average velocity हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हमको चेंज इन वेलोसिटी दी हुई है जो कि यूनिफॉर्म रेट से है तो एवरेज वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2. Now the next topic is acceleration. Acceleration is a measure of the change in the velocity of an object per unit time. For example, acceleration के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है. अगर उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और सडनली वो इंक्रीज़ करता है 2 से 10 मीटर पर सेकेंड,
तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। और उसको इस वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कितना टाइम लगा, मान लीजिए 10 सेकेंड लगे। तो हम इस एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, तो 10 में से हम 2 को माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे जो उसको टाइम लगा था। 10 सेकेंड अगर टाइम लगा था तो उसको 10 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सो एक्सेलरेशन कैन बी फाइंड बाय change in velocity divided by time taken. If velocity of an object changes from initial value u to final value v in time t, the acceleration is given by, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है और उसको t टाइम लगता है ये चेंज करने में, तो एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं a इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, and this kind of motion is called as accelerated motion and SI unit of acceleration is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके के मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे क्योंकि चेंज इन एक्सेलरेशन हो रहा है और इसकी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। Now, if acceleration is in the direction of the velocity, then it is positive acceleration, and if it is in the direction opposite to direction of velocity, then it is negative, and negative acceleration is termed as retardation. Now we have uniform circular motion. Earlier we studied uniform motion and non-uniform motion. Now this time we have uniform circular motion. As name suggests, uniform means constant, circular means circle path, and motion means changing position from one place to another. So we can state that when an object moves in a circular path at a constant speed, then motion of the object is called uniform circular motion. When a body travels in a circular path with a constant speed, then it is called as uniform circular motion. If the speed of motion is constant for a particle moving in a circular motion, still the particle accelerates because of constantly changing direction of the velocity. अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है क्योंकि वो जो मूव कर रहा है वो टेंजेंशियली मूव कर रहा है और आपको पता है वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ चेंज होती है, यानी कि हर एक पॉइंट पर जो वो ऑब्जेक्ट है वो टेंजेंशनली मूव करेगा, तो उसकी हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है और जब भी डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी उसकी चेंज होगी, लेकिन स्पीड उसकी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि वो पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है, भले ही उसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वी नो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय 2πr। हमें पता है, अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। हमको पता है वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और किसी भी सर्कुलर पाथ पर उसका हमें अगर रेडियस पता है, रेडियस मान लीजिए उसका r है, तो उसका जो पाथ जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है वो कितना कर रहा होगा, जो उस सर्कल की सर्कमफ्रेंस होगी, दैट इज 2πr। तो इफ बॉडी टेक्स 10t सेकेंड to go once around the circular path of radius r, the velocity v is given by, अगर वो ऑब्जेक्ट 2πr सर्कमफ्रेंस कवर कर रहा है t टाइम में, तो हम उसकी वेलोसिटी कैसे गिवन कर सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, v इक्वल्स टू 2πr डिवाइड बाय t। वन थिंग वी मस्ट कीप इन माइंड दैट यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज नॉट एक्सेलरेटेड बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड। मीन्स जब भी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो वो आपका मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड आपकी कांस्टेंट है, जबकि नॉन सर्कुलर पाथ में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो जो मोशन है उसका वो आपका एक्सेलरेटेड होगा। ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। एग्जाम्पल्स फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन करती हैं, सिमिलरली मून जो है अर्थ के अराउंड मूव करता है, तो ये सारे आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज लाइन ग्राफ्स।
किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन बताने के लिए हम लाइन ग्राफ्स का यूज़ कर सकते हैं और उससे हम पता लगा सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है. Now let us take some graphs and we will discuss about the motion of an object. Distance time graph will show the speed of an object. Now let us take the first graph in which we have a straight line with constant slope that represent that the speed of the object is uniform. Now the second graph has no straight line and not a constant slope, then it will represent non-uniform speed of an object. In the third one, the distance is constant and the time is continuously passing. So we can say that the object is at the same distance and the time is passing, then the object is at rest. Now in the fourth graph, the velocity is constant and time is passing out, so we can say that the velocity is constant and there is no acceleration. Whenever there is no difference in velocity, then there is no acceleration. And the fifth one shows uniform acceleration because velocity and time are linearly increasing. Now we have velocity time graph. Velocity time graph will show you acceleration. ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं फोर्थ ग्राफ में क्या है, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है लेकिन टाइम पास होता जा रहा है. तो इसमें आपकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं कि नो एक्सेलरेशन टेकिंग प्लेस इन दिस ग्राफ. नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड टाइम आर increasing simultaneously and we are getting straight line with constant slope, so we can say that there is an uniform acceleration. That's it.